بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الطاف حسین صاحب کو نہ تو کوئی روک سکتا ہے سیاست میں، نہ ہی ان پہ کوئی پابندی لگانے کے باوجود کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ اس تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آفاق احمد صاحب نے جو کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا، کتنا وہ مثبت ترین رہا، کتنے لوگ اس میں آئے اور کس طرح لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کتنا لوگوں نے تعاون کیا، اور کون کون لوگ، کون کون جماعتیں، کون کون سیاسی شخصیات تھی جو آفاق احمد کے اس احتجاجی دھرنے میں شریک تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آفاق احمد نے جو اس اپنے قافلے سے خطاب کر رہے تھے کہ الیکٹرک کے خلاف، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ طاقتیں ایسی تھی جنہوں نے کراچی میں فسادات کرنے کی پوری کوشش کری اور کئی فسادات کراچی میں کرائے، جن میں پٹھان سندھی، پٹھان مہاجر، مہاجر سندھی، ان لوگوں کو آپس میں لڑوایا اور بہت بڑے پیمانے پہ فسادات کروائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آفاق احمد صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکٹرک کی جو گنڈا گردی ہے اس کو کراچی والوں نے اب ختم کرنا ہوگا، اور آفاق احمد نے یہ بھی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر کے الیکٹرک اپنی گنڈا گردی بند نہیں کرے گی، اگر کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرے گی، انہوں نے کم کے پوائنٹ پہ کوئی ان کی رضامندی نہیں ہے۔ آفاق احمد صاحب کا یہی کہنا تھا کہ الیکٹرک مکمل طور پہ جو بجلی کا لوڈ شیڈنگ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے اس کو بالکل ختم کرے، کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم بجلی کے بل دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے کراچی کا۔ تو آفاق احمد صاحب کا کہنا تھا کہ الیکٹرک مکمل طور پہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرے، ورنہ وہ دھرنا بھی دیں گے۔ انہوں نے یہ دو ٹوک موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہماری بات اس احتجاج پہ نہیں مانی گئی تو ہم اب دھرنے کی طرف جائیں گے اور ہم دھرنا دیں گے اور کراچی کے لوگ میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ اس میں تاجر تنظیمیں بھی تھی اور سیاسی تنظیمیں بھی کچھ اس کے اندر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تنظیمیں بھی اس کے اندر تھی، جو لوگ اس کے اندر علماء لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ کاروباری شخصیات بھی بیٹھی تھی۔ آپ سب کو پتہ ہے کاروباری شخصیات سب سے زیادہ پریشان اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، کہ ایک تو کاروبار پہلے سے معیشت بگڑنے کی وجہ سے، اور جس طرح جتنی سیاسی صورتحال ہے 2018 سے لے کے 2022 سے عمران خان کی حکومت گرنے سے لے کے ابھی تک جس طرح کا منظر نامہ پوری عوام کے سامنے کس طرح بدستور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ماحول ملک کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی بدستور خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آفاق احمد صاحب نے یہ کہا، اور جتنے یہ لوگ کاروباری شخصیات ہیں ان کی یہی پریشانی ہے کہ پہلے سیاسی لوگوں کی وجہ سے یہ کاروبار خراب ہوئے، اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے کاروبار خراب ہوئے، اب یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ اس احتجاجی ریلی میں شریک ہوئے اور انہوں نے بھرپور ساتھ دیا آفاق احمد صاحب کا۔ اور آفاق احمد صاحب کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہے، آفاق احمد صاحب الطاف حسین صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، کیا آفاق احمد صاحب الطاف حسین کے انڈر رہ کے کام کرنے کو تیار ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں انہوں نے بہت بہترین بات کری کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال، مصطفیٰ کمال ہے کون؟ انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا مصطفیٰ کمال کے بارے میں کہ مصطفیٰ کمال کچھ بھی نہیں ہے، مائنس ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیادت جو ہے وہ ایک قائد کرتا ہے، قوم کی لیڈر، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کی قیادت کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کمال نہ لیڈر ہے، نہ میں اس کو لیڈر مانتا ہوں، نہ یہ قوم کی قیادت کر سکتا ہے۔ تو اور بھی کئی الزامات تھے جو انہوں نے لگائے مصطفیٰ کمال صاحب پہ، اور ہونے بھی چاہیے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایم پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ابھی ایم این ایز کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت کے ساتھ بھی ہیں، وفاق کے اندر بھی ہیں، جن کو وزارتیں بھی ملی ہیں وفاق کے اندر، اب یہ جو گورنر سندھ دیکھ لیں کمان ٹیسوری، وہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کے، لیکن یہ لوگ کہ الیکٹرک کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، یہ لوگ مہنگائی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، یہ کراچی کے کسی مسائل کے بارے میں آواز نہیں اٹھا رہے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ آوازیں اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان، یہ کراچی سب کا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایم این اے کی سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا وہ بے فکر ہو گیا، باقی عوام کا کیا؟ جس عوام کے پاس آپ آ کے ووٹ مانگتے ہیں
जिस अवाम को आप बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, अवाम का आपको फिक्र और खौफ आता है, जिस अवाम की फिक्र आपको ज़िमनी इंतखाबात में आती है, जनरल इंतखाबात में आती है, तो वही अवाम आज बैठी, इस अवाम की आप फिक्र क्यों नहीं कर रहे? यही अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सीटें ली हैं कराची से, अगर वहां के हलके देखें, पहला हलका में आपको सूबाई हलका जो सैयद गनी साहब का है, जो हल्का NA 238, जिसमें सूबाई हल्के 2 लगते हैं और कौमी हल्का 1 है, जिसमें इनके जो दोनों सीटें हैं, सूबाई सीट और कौमी असेंबली की सीट, दोनों सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं। हल्का NA 238 की, 37 की। अब इस तमाम हल्के में, इस हल्के के इलाके में आपको गरमा देता हूं, महमूदाबाद सबसे बड़ा इलाका है, कयूमाबाद ये इसके अंडर आता है, और इसके अंदर मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और आजम बस्ती और भी इसके इलाके हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मसाइल जो चल रहे हैं पानी के। अब इन साहब की तकरीरों की मैं खुद कवरेज कर रहा था, तो इन साहब ने बड़े बड़े नाम लिए। मैं जमात इस्लामी ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है गैस का, जमात इस्लामी ने यहाँ की पाइपलाइन का स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अब मुझे आप वोट दे, मैं जीतूंगा, मैं ये तमाम मसाइल आपके दूर करूंगा, पानी के मसाइल जो कम है वो भी पूरे करूंगा। लेकिन इनके बनने के बाद, इनके एमएनएज और एमपीएस बनने के बाद, अब जो पानी था वो भी यहाँ से गया और टैंकर माफिया का यहाँ भी राज बदस्तूर जारी हो गया। ये वो इलाका था जो 2018 में यहाँ की जो कौमी असेंबली की सीट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, और सूबाई असेंबली की एक सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी और दूसरी सीट जो थी वो तहरीक इंसाफ के पास थी। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर काम भी कराया था, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनकी टक्कर में आके कुछ ना कुछ काम जरूर करा रही थी। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस इलेक्शन में न होने के बराबर थी, क्योंकि उनके साथ जो हुआ पूरी कौम के सामने है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से जीती तो उसका रद्द अमल देखें कि यहाँ पानी भी गायब हो गया। अब सवालिया निशान ये है, अगर कराची में इस तरह के हालात रहेंगे, या एमपीएम पाकिस्तान के लोग जहां जहां से जीते हैं वो अपने हलकों में नहीं जा रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अपने हलकों में नहीं आ रहे, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और इलेक्शन करीब आते हैं तो ये लोग मुंह उठा के आ जाते हैं वोट मांगने। हम आवाम से गुजारिश है हमारी, आप इस चीज को देखें, ये लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं आप लोगों के साथ, किस तरह आप लोगों को लूट रहे हैं, ये आपके जज्बात से खेल के, आपकी तवक्कुआत से खेल के। आप इस चीज को नोटिस करें, हर व्लॉगर आपको इस तरह की मालूमात नहीं देगा। ये मेरी वो मालूमात हैं, ये जो मैं खुद अपने जाती तौर पे जाके मैंने देखी है। मैं आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या किसी यूट्यूबर से सुनी सुनाई बात आपके आगे नहीं रख रहा। मैं आफाक अहमद साहब के इस एहतजाज में गया, मैंने ये चीज उनकी, ये जो बात वो कर रहे थे, ये बात मैंने खुद सुनी, मैंने किसी सोशल मीडिया से ये बात नहीं सुनी। मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था कि आफाक अहमद साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, और उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, और उन्होंने एहतजाज करना था, उन्होंने किया भी। अब ये जो हल्का था, जिस हल्के का मैंने अभी आपको बताया, ये जो इलाके मैंने बताए, इन इलाकों में मैंने खुद जाके कवरेज करी थी। मेरा यहाँ का अवामी सर्वे भी मौजूद है, अगर आप मेरे व्लॉग उठा के देख ले, मेरा अवामी सर्वे भी मौजूद है। लोगों ने अल्ताफ हुसैन का नाम सरे फहरिस्त लिया था, जिससे मैं पूछ रहा था वो अल्ताफ हुसैन को, वो अब अल्ताफ हुसैन है नहीं, सबको पता था, इस चीज का सबको पता है कि अल्ताफ हुसैन नहीं थे, लेकिन लोग कह रहे थे हम अल्ताफ हुसैन को वोट देंगे, लोगों की मोहब्बत थी। लेकिन जिन लोगों ने इन लोगों को वोट दिया, या ये फार्म 47 वाले हैं, फार्म 45 वाले तो हमें नहीं लगे, क्योंकि जब हमने सर्वे किया, उस सर्वे में मेरे सामने है रिपोर्ट, ये तो मेरे खुद का सर्वे किया हुआ रिपोर्ट है कि लोग, तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अल्ताफ हुसैन के नाम के वोट दे रहे, जो कि दोनों के दोनों इस टाइम नामजद मुस्लिम है, कि इमरान खान के ऊपर भी बेताशा पर्चे कटे हुए हैं और अल्ताफ हुसैन के ऊपर भी कई इल्जाम हैं। लेकिन उसके बावजूद
जितनी आवाम थी जिससे मैं वोट का पूछ रहा था, वो इमरान खान साहब और अल्ताफ हुसैन साहब के लिए वोट दे रहे थे। ये था वो हमारा जनरल सर्वे जो हमने इस हल्के से किया था। लेकिन जब इलेक्शन हुए, मैंने इलेक्शन की भी यहाँ की कवरेज करी, और यहाँ की जब इलेक्शन की मैंने कवरेज करी, फार्म 45 के हिसाब से यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत गई थी, क्योंकि मैं खुद यहाँ के पोलिंग स्टेशन के सामने घूम रहा था और मैं देख रहा था, मैं रिजल्ट देख रहा था। यहाँ काफी ऐसे मसाइल हुए कि रेंजर्स को भी आना पड़ा, बार बार रेंजर्स को आना पड़ा, कि ऐसे ऐसे मसले हो गए थे यहाँ। लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज देख रहे थे कि 1 बजे तक फार्म 45 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ सर फहरिस्त थी, और जो सूबाई हल्का था वहां जेडीए के रहनुमा थे, वो जीत रहे थे, और वो फार्म 45 का जो अपना रिजल्ट था वो लेके भी चले गए थे। लेकिन जब रात को 1 बजे ये इलेक्शन रुका और सुबह जो रिजल्ट आया तो सैयद गनी साहब जीत गए, और सैयद गनी साहब के साथ साथ इनके जो कौमी असम्बली के दोस्त थे वो भी जीत गए। अब मकसद ये है कहने का कि ये लोग तो फॉर्म 47 वाले थे, तो इन्होंने तो कोई खिदमत नहीं करनी। तो अवाम को, अफाक अहमद साहब का यही कहना था कि अवाम को खुद निकलना चाहिए। अब उन्होंने, उनका ये पहला कदम था जो उन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ निकाला, और काफी हद तक ये कामयाब हुआ। सियासी जमातें, मजहबी जमातें और ताजर बरादरी ने उनका काफी साथ दिया, और कई कारकुनान भी थे उनके साथ जो इस एहतजाज में शरीक थे। अब उन्होंने यही डेडलाइन दी है कि अगर हमारा ये बात नहीं मानी गई तो हम अब धरने की तरफ जाएंगे। तो क्या आगे कराची में नया लाएमल क्या होगा, सियासी सूरत किस तरफ जाएगी, क्या आफाक अहमद को धरना कर सकेंगे, या इनके धरने से पहले इनके मसाइल हल होंगे? अगर मसाइल ना हल हुए तो ये धरने में जाएंगे, क्या इनके साथ आगे का मामला क्या होगा? क्या आफाक अहमद के साथ भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ या अल्ताफ हुसैन जैसा मामला होगा, या आफाक अहमद साहब को इजाजत ऐसी मिल गई कि आप आफाक अहमद साहब अभी सियासी गर्मियां बेतहाशा चला सकते हैं? इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं, इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला है अदालत से, कल जो इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, जिससे पूरी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई, सारी जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई कि इमरान खान साहब को ऐसा रिलीफ कैसे मिल गया। वो साइफर केस जिसकी जज अबुल हसनात ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी, उस सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और ये किस चीज पे पेशरफ्त है कि ये इमरान खान के लिए अब जो राय हैं वो अब हमवार होना शुरू हो गई है। बाकी भी जो केसेस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो जाएंगे, और इसी तरह अल्ताफ हुसैन के लिए कितने केसेस हैं जो अल्ताफ हुसैन के लिए भी रिलीफ मिल सकता है। देखिए, अभी ये वो वक्त आ गया है कि अब सियासी जमातों को चलाने वालों को यह पता चल गया है कि अब इन जमातों को हमने चलाना ही पड़ेगा। इमरान खान को भी चलाना पड़ेगा और अल्ताफ हुसैन को भी चलाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि अल्ताफ हुसैन के लिए कौन से रिलीफ तैयार हैं, और किस तरह अल्ताफ हुसैन दोबारा आ सकते हैं, और कौन कौन लोग इस तमाम मामलात में अल्ताफ हुसैन का साथ देंगे। ये तमाम चीजें हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। अगर ये वाला ब्लॉग आपको मेरा समझ में आया तो इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए जितना मैंने ब्लॉग में, इस ब्लॉग में मैंने जो बातें करी, मैंने इस कराची वालों के हक के बारे में बात करी, क्योंकि देखें इस टाइम सबसे ज्यादा मुल्क में परेशानी जो सबसे ज्यादा है कराची वालों के लिए बिजली की लोड शेडिंग। ये एक शहर है, शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ पानी के सबसे बड़े मसाइल, इसके बारे में हमें बदस्तूर आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम खुद मुजरिम हैं, हम जुल्म का साथ दे रहे अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे। हमारा हक बनता है हम गलत चीज के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम आवाज उठाएं। अगर अफाक अहमद इस चीज के लिए निकले तो हमें उनको दाद देनी चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, वो कराची वालों की आवाज बने। अगर आज अल्ताफ हुसैन साहब को इजाजत मिली होती और अल्ताफ हुसैन साहब होते तो जरूर वो भी यही अमल दोहराते जो अफाक अहमद ने दोहराया, कि वो भी एहतजाज करते, क्योंकि एहतजाज करना हमारा कानूनी और आईनी हक है, कोई हमसे ले नहीं सकता। हम हर प्लेटफॉर्म पे एहतजाज कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे एहतजाज करें, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एहतजाज करें,
हम बाहर निकल के एहतजाज करें, हम के इलेक्ट्रिक के सामने जाके एहतजाज करें, हम सिंध हुकूमत के सामने जाके एहतजाज करें, हम वज़ीर आला हाउस के सामने जाके एहतजाज करें, ये हमारा आईनी हक है। हम पुरअमन एहतजाज हर हाल में कर सकते हैं। जिस तरह हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, जो हमारी कराची के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए और हर सूरत हमें आवाज उठानी चाहिए। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज उठाने से पहले हमें दबा दिया जाएगा। अगर हमें अपनी नस्लों का सोचना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों का सोचना पड़ेगा। आज हम लोग जिस हाल में, अगर आप सोचें 2030 में या 2035 में आने वाला वक्त किस तरह होगा, अगर इसी तरह के मामूलात रहे, हमें अब वक्त को खुद बदलना है। ये हुकूमती नुमाइंदे नहीं बदलेंगे, हमें खुद बदलना है, डंडे के जोर पे बदलना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों का भी साथ चाहिए। हमारा एहतजाज आप शेयर करें ताकि दूसरों तक ये एहतजाज पहुंचे और खुद भी इस एहतजाज का हिस्सा बने और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।